friends, welcome to the Lost Places and Temples. My name is Yash and आज मैं आप सबको लेके आया हूँ अलीबाग में. Well, Alibag lies in the south region of Maharashtra. It's known as the coastal town of Maharashtra also, and it's known as mini Goa also. Well, क्यों? क्योंकि Alibag is famous for its clean beaches, clean air, and the seafood is amazing here. So अगर आप अलीबाग आ रहे हैं from Bombay, then it's at least 96 kilometers, and if you are coming from Pune, then it would be 150 kilometers. So today we are going to explore Alibag. So I'll tell you to tune in with me, guys. So friends, we are on our way towards the Kashid beach, but उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा फार्म हाउस टाइप होटल है. यहाँ पर हम अपने खाने के लिए रुके हैं. I'm just going to show you the interior of this hotel, how it's made. ये थोड़ा सा गोवन स्टाइल में भी इन्होंने इस फार्म हाउस को बना रखा है. See, coconut trees will give you the feel of Goa here. And it's a small way towards the beach also. I'm going to show you. And from here, you'll get to the beach. And here we have our friends जिनके साथ हम आए हैं. Now we have reached Kashid beach here, and outside this beach we have this big mountain, lots of trees, and this way will take you towards the beach. So let's go and see the beach. इस बीच पे करने के लिए बहुत कुछ है. काफ़ी लोग यहाँ पे नहाते भी हैं आके, और इट्स अ वेरी गुड बीच टू वॉक ऑन. इट्स अ वेरी बिग बीच, एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस बीच दैट it has a beautiful sunset. If you will be evident to this sunset, otherwise you can do a lot of things here. Just going to show you a 360-degree view of this beach. This is the beauty and the sun I'm going to show you. So we are heading towards our new place where we are gonna set up a tent, and we are going to live in that tent, I guess, on this mountain. So looking forward to this place. It's going through these beautiful roads, these half-cut rocks, small trees, and the beach is over here. And we are heading towards on the top of this beach to stay for tonight. Let's go. And we are almost here. Just going to reach where we are going to stay, and in between these are these beautiful landscapes, sceneries you're going to see. Let's go. And
This is the campsite where we are going to stay. And as we enter this campsite, we have these beautiful tents just across the sea. See, this is the location where we are going to stay here tonight. वेल यू वांट टू सी कि हम कहाँ एग्जैक्टली रुकने वाले हैं, आप जानना चाहते हैं? आपको दिखाते हैं, यहाँ रुकने वाले हैं। एंड दिस इज द व्यू वी आर गोइंग टू गेट इन द मॉर्निंग। Good morning, guys. We had a lovely stay in this place, and let's see what this place is offering us. Now, friends, when you wake up in the morning, so what are you going to witness? The first view of your morning, I'm going to show you that. Yes, now this is the view you get to see in the morning. Just see this beauty. सो गाइस, जहाँ हम रुके थे, जिस कैंप साइट पे हमने इतना अच्छा व्यू देखा और इतना अच्छा नाइट स्टे किया, उनके ओनर से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ और वो आपको बताएंगे कि काशिद बीच पे कैसे आने का है और यहाँ उनका क्या नाम है। हेलो, हाय। यहाँ से काशिद पे आपको आने के लिए मतलब 2-4 मतलब आप लोग पब्लिक ट्रैवल से भी आ सकते हैं, मतलब और फेरी का भी सर्विस है। 2-4 टाइप से आ सकते हैं आप लोग। और आपका सोशल मीडिया पे किस नाम से है? सोशल मीडिया पे अभी मतलब अकाउंट बना नहीं है हमारा, जल्दी अपलोड कर देंगे। बट कोई बात नहीं, आप अपना नंबर पहले दीजिए। ओके, 8412918140। थैंक यू सो मच। आपका नाम? प्रतीक। ओके, जब भी आप काशिद बीच आएँ, आप प्रतीक को कांटेक्ट करिए और कैंपिंग साइट के लिए सबसे बेस्ट विजिट है यहाँ पे। ऑल द बेस्ट। सो आई एम गोइंग टू शेयर वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस प्लेस, कि जो आपको खाना प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पे, वो इतना नेचुरल है और ये लोग खुद ही उस खाने को उगाते हैं। इसके लिए मैं आपसे आपकी बात करने वाला हूँ। मिस्टर, आपका नाम? बबन माली। तो बबन जी, आप ये सारा खाना खुद ही उगाते हैं यहाँ हाँ पे? सर, यहाँ कैसे सब बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, तो हमने ऐसा सोचा है कि होममेड फूड, मतलब ऐसा है कि हम जो हमारे खेत में जो पकती है, जो चावल, उनकी चावल से जो पिसा हुआ जो आटा है, यो आटे से हम जो भाकरी, मतलब घावना भाकरी, वही हम बनाते हैं। और वो हम लोगों को बॉम्बे से आने वाले बोलो, पुणे से आने वाले बोलो, ठाणा से आने वाले, ऑल इंडिया से आने वाले उनको हम देते हैं। और हमारे खाने के लिए वो इतना वो लोग रिपीट करते हैं कि भाई तुम लोग ऐसा कैसा बना सकते हैं कि हमको किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता, ऐसा आप खाना देते। तो हमको हौसला
हमारा बढ़ जाता है। जो मछली हम पकड़ते हैं वो मछली का भी हमारे खुद का बोट है, और हम बोट लेके सुबह 4 बजे हम जाते हैं, तो 4 बजे जाने के बाद पॉपलेट बोलो, लॉबस्टर बोलो, वैसे कोई चीज़ हम लेकर आके हम इनको दिखाते हैं। कोई रेस्टोरेंट ऐसा ना होगा कि वो जाके दिखाते, हम खुद मछली उनको दिखाते कि भाई ये ऐसा ऐसा मछली है, और हम खेत में उनको लेके जाते हैं। हमारे सामने खेत जो दिख रहा है अभी नया नया उगम हो रहा है, तो हम खेत में उनको लेके जाते हैं, और वहाँ से उनके हाथ से सब्जी हम उनको निकालने के लिए बोलते हैं, और उनसे हाथ से काटने के लिए, और हम उनको पका के वो सब देते हैं। चावल में हम कोई यूज केमिकल नहीं करते, हम खत जो बोलते हैं वो भी हम यूज नहीं करते। हमको कम मिला चावल तो भी चले, लेकिन हमको अच्छा खिलाना है, इसके लिए कि रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है इधर, कि ऐसा झोपड़ी देख के हमारे, देखो हमने झोपड़ी बनाए, हम बड़ा रेस्टोरेंट बना सकते थे, लेकिन बॉम्बे में और पुणे में ऐसा बड़े बड़े सिटी में तो रेस्टोरेंट में लोग खा के वो लोग तो थक गए हैं, लेकिन उन लोग को ऐसा चाहिए कि ऑर्गेनिक बना, वो हमारे सामने निकल के दीजिए, ऐसे वो लोग बोलते, तो हम लोग उनकी भावना समझ के हम वो सब देते हैं। तो हमको भी रिस्पॉन्ड, हमारे जो आने वाले कस्टमर जो सर ऐसे है कि एक बार आके गए तो दूसरा बार 10 ग्रुप का लेके आता है, वो 10 लेके गए 100 का ग्रुप लेके आता है, ऑर्डर पर फ़ोन करते हैं, और हम ऐसा हम खाना उनको पहुँचे देते हैं। और हमारे खाने के लिए वो लोग इतना रिस्पॉन्स है, इतना रिस्पॉन्स, बहुत रिस्पॉन्स। ये सब ने जो कि खाना गया तो उनको मैं भगवान समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए वो धंधा का एक नया जादू सिखाया है। तो इन सब का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। नया साल की सबको शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच पवन जी। देखिए इतना प्यार से आपको खिलाएंगे, इतना प्यार से सर्व करेंगे, तो आपका आना यहाँ पे बनता है। पवन जी आपकी जगह का नाम बता दीजिए। ये मेरा नाम है, दांडा काशिद के बीच है। और सर मैं ऐसा है, एक आदमी ऐसा हूँ, मैं कभी कि मेरे को इतना ही पैसा मिलना चाहिए खाने का, ऐसा मैं किसी के साथ, किसी कस्टमर के साथ मैं ऐसा झगड़े वाली बात तो नहीं की। वो एक बार खाना खा के गया ना, तो मुझे इतना प्यारा लगता है, मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसको खाना खिलाए तो ये मैं पुण्य समझता हूँ, मेरा भाग्य समझता है। मैं आज तक बिल के ऊपर से किसी के पास में ऐसा बोलने गया नहीं कि मुझे इतना ही हुआ, इतना ही चाहिए, मुझे 50 कम दो, 100 कम दो, मुझे ऐसा कोई वादा नहीं है। तो मैं हमारे घर में बनाते हैं, हमारी पत्नी बनाती है, हमारे 2 बच्चे हैं वो बनाते हैं। इधर काम के लिए कोई हम रखा नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, वो हम खाना बना के हम सब हमारे हाथ से देते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। वो सबको हम समझते हैं कि हमारे कोई मेहमान आते हैं, हमारे कोई रिलेटिव आते हैं, ऐसा समझ के हम उनको खाना खिलाते, उसके बाजू में बैठ के हम उसको पूछते हैं भाई खाना कैसा हुआ है, तो वो इतना रिस्पॉन्स देता है, वो हमको लिए सबसे बड़ी आशीर्वाद की बात है। Okay. Thank you so much, Pavan. So that kind of love you're going to get when you will reach here, Kashid Beach. All the best. Hello. Okay, so after our lovely lunch at Mauli Homemade Food, हम पता करते हैं कि यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं, जो ट्रैवलर्स आते हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उन्हें यहाँ का खाना कैसा लगता है। हेलो सर, आपका नाम? Yeah, my name is Danesh Paradi. Dinner is fantastic. The arrangement is lovely and the place is very, very full. We enjoyed a lot. This is our 3rd consecutive time we're coming here. Yesterday we checked the dinner quality and also came for the dinner. So खाना बहुत ही लाजवाब, और इनके जो ओनर है इस होटल के, वो उनका जो स्वभाव, and then he entertained the family is like it's a feeling like a family. So I would recommend this hotel very much. Great. So may we know right now at present where are you staying? I'm staying in Nisarg. Sai Kishan, I think. All right. And we came here. We're just exploring the homemade food actually. Okay. And then we come across this place, and just had our lunch, and it's what fantastic. So we enjoyed, and then, as I said, this is our 3rd time coming here. That's just to have food. Today we are leaving, but just want to enjoy the non-veg food. So I can feel it. You are already missing the food. You will miss it. Actually. Yeah. So what do you wanted to say about this? About Kaka. Yeah. I'll say. Kaka is Kaka. Superb person. और I think Kaka को 2 minutes में explain करना possible नहीं है. His nature, his hospitality, his behavior, fantastic. That's very nice. Food तो अच्छा है ही है, पर Kaka is very, very nice person.
That's so we have lady ka. मावशी So we have these beautiful people and they have their reviews. So आप जब भी काशिद बीच आएँ तो माउली homemade food ज़रूर विजिट करें. शायद आप प्लेस देख के सोचोगे कि यहाँ क्या मिलेगा, लेकिन कम इनसाइड एंड You'll सी feel द the फूड, सी द पीपल, फील द प्लेस. वाह. So almost an end to this trip. It was really a memorable trip. We had great beaches, great mountains, beautiful sea and beautiful villages. And I found out some interesting fact about this place, about the history of Alibag. I'll share with you. Well, अलीबाग का नाम कैसे पड़ा? सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत समय पहले की बात है कि एक इज़राइली आदमी आया था जिसका नाम था अली. और अली बहुत रिच था. इस पूरे गांव में सबसे रिचेस्ट आदमी का नाम अली था. और उसके पास बहुत सारे आम और कोकोनट के ट्रीज़ थे विच ही यूज्ड टू ओन दोज गार्डन्स इन दैट टाइम. सो दैट्स हाउ दे गॉट दिस नेम अली बाग. क्यों? क्योंकि हिंदी में कहते हैं अली का बाग. सो दैट्स हाउ दिस प्लेस हैज़ गॉट इट्स नेम अली बाग. सो बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा फैक्ट मुझे ये पता पड़ा इस जगह के बारे में. तो आई थॉट टू शेयर विथ यू गाइज. एंड you know the drill. If you like my episodes, you like my content, please support me, subscribe my channel, like it, comment it and share with your friends. That's it. I'm going to see you next time, next place with some new content. Okay? Stay healthy, stay safe. Bye.